السلام علیکم دوستو، 6 دسمبر 1992 ایک ایسی تاریخ جس نے دنیا کے سب سے بڑے لوکتنتر کو دیکھنے کا نظریہ ہی بدل دیا۔ نہ قانون نہ پرشاسن اس دن پورا ایودھیا کار سیوکوں کے جنون کے حوالے تھا۔ دیش بھر سے اکٹھا ہوئے لگ بھگ 2.5 لاکھ سے زیادہ کار سیوک جب ایودھیا میں داخل ہوئے تو ایسا لگا گویا انسانوں کا ایک سیلاب آ گیا، اور یہ سیلاب تیزی کے ساتھ بابری مسجد کی طرف بڑھنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری کی پوری مسجد کو ملبے میں تبدیل کر دیا، اور دیش کی راجنیتی دھرم کے رنگ میں رنگتی ہی چلی گئی۔ کیا ہے 6 دسمبر 1992 کی پوری کہانی؟ کس طرح 1949 میں بابری مسجد کے اندر مورتیاں رکھی گئیں؟ کیسے شروع ہوا مندر مسجد کا وواد؟ اور کیا ہے ایودھیا کی پچھلے 500 سال کی تاریخ؟ آئیے سمجھ۔ Do not regard it as a masjid. لاکھوں لوگوں کو قربانی دینے پر تو لاکھوں لوگ قربانیاں دیں گے، مگر مندر تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بابری مسجد کے بننے سے صدیوں پہلے سے ہندو مسلمان ایودھیا میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ 1855 سے پہلے کسی مذہبی معاملے میں ہندو مسلمانوں کا آپس میں جھگڑا ہوا ہو، ایودھیا میں ایسی کوئی بات تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی۔ 3 گنبدوں والی یہ پرانی مسجد اودھ کے حاکم میر باقی اصفہانی نے 1528 میں بنوائی تھی، جس کے چھت والے حصے میں 3 صفیں تھیں اور ہر صف میں 120 لوگ نماز پڑھ سکتے تھے۔ صحن میں 4 صفوں کی جگہ تھی۔ اس طرح بیک وقت 850 لوگ مسجد کے اندر نماز ادا کر سکتے تھے۔ 1528 سے 1949 تک یہ مسجد ہی رہی۔ ایودھیا میں سب سے پہلا اختلاف 1855 میں ہوا۔ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جنم استھان کے نام سے 21 فٹ لمبی اور 17 فٹ چوڑی جگہ ہندوؤں کو دے دی گئی، اور اسی وقت سے وہاں پوجا پاٹ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ لیکن 1857 میں جب ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں نے متحد ہو کر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جنگ کی، تو ایودھیا کے مسلم رہنما امیر علی اور ہندو رہنما بابا چرم داس دونوں نے مل کر یہ معاہدہ کیا کہ کیوں نہ ہندو مسلمانوں کے اس اختلاف کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، اور ایک معاہدہ کیا کہ وہ حصہ جس پر ہندو دعویٰ کرتے ہیں وہ ہندوؤں کو دے دیا جائے، اور بابری مسجد کے اندر کا حصہ مسلمانوں کو دے دیا جائے، اور دونوں فریق اس معاہدے پر خوشی خوشی راضی ہو گئے، اور یوں 2 سال سے اختلاف کی ہوا جو چل رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ مگر انگریزوں کو یہ ہندو مسلم اتحاد پسند نہیں آیا۔ انہوں نے بابا رام چرن داس اور امیر علی دونوں کو املی کے پیڑ پر لٹکا کر پھانسی دے دی، اور مندر مسجد کے وواد کو پھر سے اٹھا دیا۔ رام جنم استھان اور بابری مسجد کے درمیان میں دیوار کھینچ دی، دونوں کے راستے بھی الگ الگ کر دیے، اور مسجد کے شمالی دروازے کو بند کر دیا۔ 1948 اور 1949 میں جب پورا ملک فرقہ وارانہ تشدد کی آگ میں جھلس رہا تھا اور پورے ہندوستان میں افراتفری مچی ہوئی تھی، تو 22-23 دسمبر کی درمیانی رات میں ہنومان گڑھی کے مہنت ابھی رام داس نے اپنے چند پجاریوں کے ساتھ مل کر بابری مسجد کے اندر مورتی رکھ دی، جس کے خلاف اس وقت ڈیوٹی پر مقرر کانسٹیبل نے FIR درج کرائی کہ آج رات 50-60 لوگ مسجد کے اندر تالا توڑ کر گھسے اور انہوں نے مسجد میں مورتی استھاپت کر دی۔ اس رپورٹ کو بنیاد بنا کر فیض آباد سٹی کے مجسٹریٹ نے دفعہ 145 کے تحت مسجد میں تالا لگا دیا، اور فریقین کے نام نوٹس جاری کر دیا کہ دونوں اپنے اپنے دعووں پر ثبوت پیش کریں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا حفظ الرحمان سہاروی نے پنڈت جواہر لال نہرو کو اس سنگین معاملے پر توجہ دلائی، اور انہوں نے UP کے وزیر اعلیٰ گووند بلبھ پنت کو بھی لکھا کہ اس معاملے کو فی الفور حل کیا جائے، لیکن کوئی مثبت کارروائی نہیں کی گئی۔ اس حادثے کے بعد 16 جنوری 1950 کو گوپال سنگھ نے یہ دعویٰ دائر کیا کہ مسجد جنم استھان ہے، ہم یہاں پوجا پاٹ کرتے ہیں، مگر ضلع حکام اور مسلمان اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، لہٰذا اس رکاوٹ کو ختم کیا جائے اور ہندوؤں کو اس میں پوجا پاٹ کی مکمل اجازت دی جائے۔ اس مقدمے کے دائر ہونے کے 3 دن بعد 19 جنوری 1950 کو عدالت نے ہندو مسلمان دونوں کا داخلہ مسجد کے اندر بند کر دیا۔ پھر 13 مارچ 1951 میں عدالت نے پجاریوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دی، اور مسلمانوں کو مسجد کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جنم استھان کے چبوترے پر بھی مندر بنا دیا گیا، اور مسجد کے درمیانی گنبد پر بھگوا جھنڈا پھہرا دیا گیا۔ یہ ساری تبدیلیاں 1967 سے 1986 کے درمیانی عرصے میں کی گئیں۔ 8 اکتوبر 1984 کو VHP یعنی وشو ہندو پریشد نے ایودھیا سے لکھنؤ تک تقریباً 150 کلومیٹر کی یاترا کرنے کا اعلان کیا۔ اگلے سال 2 دسمبر 1985 میں فیض آباد کے ایک نوجوان
उमेश चंद्र पांडे ने डिस्ट्रिक्ट जज के सामने एक अपील दायर की कि जन्म स्थान में पूजा पाठ की इजाज़त होनी चाहिए, इसलिए अदालत ज़िला इंतज़ामिया को इस बात का हुक्म दे कि वो मस्जिद का ताला खोल दे और हिंदुओं को पूजा पाठ की इजाज़त दी जाए। जज ने 1 फरवरी 1986 में 11:15 बजे ताले को खोलने का ऑर्डर दे दिया। ये एक तरफा फैसला था कि ज़िला इंतज़ामिया मस्जिद का ताला खोल दे और हिंदुओं को मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त दे दी जाए और उसमें किसी किस्म की रुकावट न डाली जाए। 5:19 पर बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, जो 1950 में अदालत के हुक्म पर लगाया गया था, और हज़ारों हिंदू जो वहाँ जमा थे मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के सरबराह ने ऐलान किया कि 9 नवंबर 1989 को मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। 9 नवंबर 1989 को चुनाव से ठीक पहले राजीव गांधी ने राम मंदिर के शिलान्यास की इजाज़त दे दी, लेकिन देश दंगों की लपेट में आ गया। बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को खूब जोर शोर से उठाया और 85 सीटें चुनाव के अंदर जीती और फिर बीजेपी के समर्थन से वीपी सिंह की सरकार बनी। मंदिर के शिलान्यास का प्रोग्राम यूं तरतीब दिया गया था कि पूरे मुल्क के अंदर एक मुहिम चलाई जाए, जिसके तहत मुल्क भर के 5,75,000 गाँव में एक एक ईंट भेजकर उसका पूजन कराया जाए और 9 नवंबर के दिन ये सारी की सारी ईंटें अयोध्या के अंदर पहुंचा दी जाएं और उसी दिन राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के सरबराह ने अपने ऐलान के मुताबिक गांव-गांव घूमकर इसकी तैयारियां शुरू कर दी। इस फैसले को अमली जामा पहनाने के लिए आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और इनके हमनवा तमाम की तमाम पार्टियां मैदान में निकल पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के सदर लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का ऐलान किया। 25 अक्टूबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से शुरू हुई उनकी यात्रा को 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचना था, क्योंकि इस तारीख को वीएचपी ने कार सेवा की घोषणा की थी। ऐलान के मुताबिक भारी तादाद में कार सेवक अयोध्या पहुंच रहे थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने गिरफ्तार करवा दिया। इस गिरफ्तारी से बीजेपी सख्त नाराज हुई और सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इसी बीच 30 अक्टूबर 1990 का वह दिन आ गया जिसका वीएचपी ने ऐलान किया था। वीएचपी के ऐलान के मुताबिक हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में कार सेवक अयोध्या में जमा हो चुके थे। 30 अक्टूबर को अयोध्या के सारे रास्ते बंद कर दिए गए, लेकिन फिर भी कार सेवकों की भीड़ अयोध्या में न सिर्फ दाखिल हो गई बल्कि बाबरी मस्जिद की तरफ तेजी के साथ बढ़ने लगी। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई, लेकिन फिर भी 2 से 3 हजार लोग मस्जिद के पास पहुंचने में कामयाब हो गए तो पुलिस ने उन पर अपनी गोलियां चला दी, जिससे 5 लोग मारे गए। इसी बीच 2 नवंबर का दिन आ गया। भीड़ अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि लोगों में और ज्यादा गुस्सा उभर रहा था। जब पुलिस को लगने लगा कि 30 अक्टूबर की घटना दोबारा से दोहराई जा सकती है, तो पुलिस ने अपनी बंदूकों का रुख कार सेवकों की तरफ कर दिया। पुलिस ने गिरफ्तारियां की, लाठीचार्ज किया और जब आखिर में भीड़ न संभली तो गोलियां भी चलाईं, जिसकी वजह से सरकारी डेटा के मुताबिक 15 से 16 लोग मारे गए और आम लोगों का कहना यह है कि तकरीबन 15,000 लोग उस दिन मारे गए, जिसकी वजह से पूरे देश में माहौल बिगड़ने लगा। वीपी सिंह की सरकार से क्योंकि बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया था तो उनकी सरकार गिर गई और चंद्रशेखर देश के नए प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने अहद हुकूमत में यह काम किया कि विश्व हिंदू परिषद और उसकी हलीफ पार्टियां और मुसलमानों को जो आपस में बातचीत से मसले को सुलझाने के लिए तैयार नहीं थी, दोनों को एक मेज पर बिठा दिया। उनके और एक्शन कमेटी के दरमियान में बातचीत होती रही, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनकी हुकूमत खत्म हो गई। इसी बीच यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार भी गिर गई और चुनाव की तैयारियां शुरू हो गईं। इसी चुनाव की तैयारियों के दौरान चुनाव प्रचार में राजीव गांधी को कत्ल कर दिया गया, जिससे पूरा देश दंग रह गया। मुल्क में इलेक्शन हुआ, जिसके नतीजे में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और मरकज यानी केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी। जुलाई 1992 में एक बार फिर कार सेवा रखी गई, लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने इस झगड़े को 3 महीने के अंदर खत्म करने का वादा किया, जिसकी वजह से कार सेवा रद्द हो गई। लेकिन जब 3 महीने के बाद भी कोई हल नहीं निकला तो 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में एक धर्म संसद का आयोजन किया गया और 6 दिसंबर 1992 को एक बार फिर कार सेवा का ऐलान किया। 5 दिसंबर तक तकरीबन 2 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या में पहुंच चुके थे।
जिन में लाल कृष्ण एडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे शामिल थे। यूपी के वजीर आला ने मरकजी हुकूमत को इत्मीनान दिलाया कि कार सेवा सिर्फ अलामती होगी, किसी तरह का कोई नुकसान मस्जिद को या वहाँ के लोगों को नहीं पहुँचाया जाएगा। बहरहाल इन सारे ऐलानात के बाद 6 दिसंबर की वहशतनाक तारीख आ गई। एडवाणी, विनय कटिहार, उमा भारती वगैरह 2 लाख कार सेवकों की फौज लिए अयोध्या में पहले ही से मौजूद थे। इन लीडरों की रहनुमाई में कार सेवा शुरू की गई और तशद्दुद पर आमदा तरबियत याफ्ता कार सेवकों ने 11:55 पर बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया और बग़ैर किसी मुज़ाहमत के पूरे इत्मीनान के साथ 4 बजे तक बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया और मलबे में तब्दील कर दिया। वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म को एक एक मिनट की खबर पहुँचती रही, मगर न मस्जिद की हिफाजत का मुरतबा मंसूबा रूबा अमल आया और न ही उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरी की गई। यूपी के मुख्यमंत्री का क्योंकि मकसद पूरा हो चुका था, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया और यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। उसके बावजूद तकरीबन 38 घंटे तक पूरा अयोध्या कार सेवकों के हवाले रहा। सब कुछ लुट जाने के बाद वज़ीर दाखिला बयान देते हैं कि मुसलमानों की पूरी हिफाजत की जाएगी और उन्हें मुकम्मल इंसाफ दिलाया जाएगा और बाबरी मस्जिद को दोबारा से तामीर कराया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और केस अदालतों में चलता रहा, यहाँ तक कि 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच ने फैसला दिया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलल्ला के दरमियान पूरी की पूरी जमीन के हिस्से को 3 जगह तकसीम कर दिया जाए। इस फैसले से क्योंकि कोई भी फरीक मुतमईन नहीं था, तो यह मामला 2010 में सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई अपीलें दायर की गईं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इन 5 जजों की बेंच ने 2019 में अपना आखिरी फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि 22-23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखना गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गुंबद के नीचे की जमीन राम की जाए पैदाइश है, हिंदू इसका कोई भी सबूत पेश नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को गिराना और उसको शहीद करना गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को गिराकर नहीं बनाई गई। बातों को मानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मस्जिद की जगह मंदिर बना दिया जाए और मुसलमानों को मस्जिद की 5 एकड़ जमीन अलग दे दी जाए। तो दोस्तों, ये थी बाबरी मस्जिद की मुकम्मल तारीख। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।